کہ اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر، چشتی رسول اللہ کفر، ساری باتیں کریں، ابہام لینا چاہیے، ایک ویڈیو بنائیں، لمبی چوڑی بات کریں، اس میں مختصر سی بات کریں، کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مولود الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا، تقی عثمانی صاحب اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں، ان سب کا نام لے کے کہیں کہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بس یہ کام کریں۔ اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، انجینئر محمد علی مرزا، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوگی لائیو، پھر چھپ کے نہیں، اپنے انٹرویوز میں نہیں، پھر لائیو مجھے کہے تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں، وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے، آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں، میرے چینل پہ آ جائیں، کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، میں وہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے، ان کو چندے دینا بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو نماز پڑھے تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ سوال نمبر 16 اسرار شاہ کا پوچھتا ہے، اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور وہ کلیئر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے۔ یہ تعویل تو خود اسے پھر بتائیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہوگی، تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاخی کی، جو صراحتاً گستاخی ہوئی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس کی تعویل اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی، ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک بھی کفر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کافر کیوں نہیں کہتے؟ میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بھائی جو بھی چشتی رسول اللہ پڑھے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی امام مسجد کہتا ہے کہ میں چشتی رسول اللہ کو درست سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک وہ کافر ہے، میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ چشتی رسول اللہ جس فرقے سے منسوب ہے یا تھانوی رسول اللہ جس فرقے سے منسوب ہے اس پورے فرقے کو میں کافر کہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا ہوں تو اس میں تو کئی لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیوبندیوں کے لاکھوں علماء، بریلویوں کے لاکھوں علماء مل کے اپنی پبلک کو اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکے، اور ادھر ایک اکیلا اللہ کا مجاہد کھڑا ہوا ہے ختم نبوت کی برکت سے، اور اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو توڑ دیا ہے اپنے بزرگوں سے۔ وہ لاکھوں لوگ کیوں ٹوٹے؟ اس لیے کہ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے فرقے کو چھوڑ دیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان پورے کے پورے فرقوں کو تو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہوئے ہیں یہ میں نے کوئی مریخ سے تو برآمد نہیں کیے ہوئے، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہی تھے نا، اپنے فرقوں کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، لیکن میں نے ذریعہ جو بنا ہوں تو میں نے ان کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا نا، تو اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں ان کو فرقے کے طور پہ کافر کہہ دوں، کیسے کہہ دوں؟ جیسے جیسے ان کی عوام کو پتا چل رہا ہے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کام ڈال کے گئے ہیں، تو اس طرح فرقے کے طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے، اسے حق سمجھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کافر ہے۔ اگر میں اسے کافر نہ کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ یہاں لوگ آ کے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ کافر کہیں، بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہتا ہوں بھائی، اور دوسرا مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی، میرے ذریعے آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے قیامت کے دن۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے، یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جہنم میں، اور جو آج بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں اور بالکل اسے درست سمجھتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں، اس کی وجہ مجھ سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں کہوں، تو میں نے تو کہتا ہوں بھائی، پھر بھی میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، کیونکہ ہمارے خلفائے راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے بھی ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، عثمان رسول اللہ، علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا۔ اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں، فرقہ دیوبندیہ اور بریلویہ اور اہل حدیث، وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، علی رسول اللہ نہیں کہتے۔ تمہارے بزرگوں نے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے، چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے یار، کہو کلمے میں بھی ایڈ کر لو، ہم کوئی کفر نہیں اسے کہیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا کام کر لیا یا بدعت کر لی، کہو کلمے کے ساتھ بھی ایڈ کر لو، چشتی ولی اللہ، تھانوی ولی اللہ کرو، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ مسئلہ اس چیز کا ہے۔
लिहाजा ये हमसे कहना, ये बात डिमांड करना भाई हम तो कह रहे हैं, और फिर ये बात लोगों की तरफ से कहना कि हम खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं। आज तक खत्म नबूवत के ऊपर काम तुम लोगों ने किया ही नहीं है, तुम लोगों ने एंटी कादियानी काम किया। खत्म नबूवत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने कादियानियों को काफिर कहना है। खत्म नबूवत का मतलब ये है कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह पढ़वाने वाले और इसे दुरुस्त समझने वालों को भी आपने काफिर कहना है। मैं तो कहता हूं डंके की चोट के ऊपर, लेकिन पूरे फिरके को इसलिए नहीं कहता कि मैंने जब उस फिरके की अवाम के सामने उनके बुजुर्गों के करतूत रखे हैं तो वो उनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो गए हैं, तो मैं उनकी अवाम को कैसे काफिर कह दूं? मैं तो उनके सरगनाओं की बात करूं, और जो उनमें से मर चुके हैं उनके बारे में ये कहूंगा कि अगर तौबा के बगैर मरे हैं तो कुफर की मौत मरे, क्योंकि मेरे सामने उनकी तौबा नहीं है और उनके आखिरी वक्त का नहीं है। लेकिन इसकी बुनियाद पे ये नहीं हो सकता कि मैं थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझूं या उसे सही कहूं, ये नहीं हो सकता। एक टिकट में इतने मजे नहीं हो सकते। तो खत्म नबूवत की रट लगाना छोड़ें। खत्म नबूवत का काम वो करेगा जो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह को भी गलत कहेगा, वरना ये खत्म नबूवत तहरीक किसी ने भी नहीं चलाई, ना देवबंद ने चढ़ाई, ना बरेलवियों की। ये सारे गुलाम कादियानी के दज्जाल के खिलाफ चलाते रहे। खादिम रिजवी भी पूरी जिंदगी कादियानियों के खिलाफ चलाता रहा तहरीक, उसने भी कभी चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह को गलत नहीं कहा, अगरचे बरेलवी सारे थानवी रसूलुल्लाह को गलत समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे बुक्स में आके इसके ऊपर बात करना छोड़ गए, कितनी दो नंबरी कर रहे हैं। और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी जो है उसके अब्बे चिश्ती रसूलुल्लाह को भी डिफेंड करते हैं। अशरफ थानवी ने पूरी किताब जो लिखी है अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, जो मैंने उसका बकायदा दिखाया है पूरा फ्रेम, उसने 3 तावीलात की हैं इसकी, मैंने एक एक बात का जवाब दिया, ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि उन बुजुर्गों का कद काट बड़ा हो गया आपके नजदीक, वो तो आपके नजदीक है, हमारे नजदीक तो जो उन्होंने बाकी दीन में भी जो खुराफात दाखिल किए हैं वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, खा वो अल मुहन्नद और अल मुफन्नद के अकीदे हो, खा और किताबें हो। और सबसे बड़ी बात, हमें तो जरूरत ही नहीं कुछ कहने की, अहमद बरेलवी ने देवबंदियों को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, इंक्लूडिंग अशरफ थानवी, और देवबंदियों ने बरेलवियों को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। अल मुहन्नद में उन्होंने अहमद बरेलवी और उनकी जमात को शैतानी लश्कर कहा है, और कहा जिस तरह नबियों पे शैतान हमलावर होते थे ये हम पे हमलावर हुए। तो नबियों पे कौन से शैतान हमलावर होते थे? काफिर शयातीन, तो काफिर ही कहा हुआ है। और अहमद बरेलवी ने जो है वो इनको कहा हुआ है कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, उसामुल अरमैन में। और अहकाम शरीयत में तो उसने यहां तक लिखा है अहमद बरेलवी ने कि देवबंदी, अहले हदीस और शिया और कादियानियों के इनके साथ शामिल किया। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया मुर्दार रहेगा। ये सब के सब मुर्तद, वाजिबुल कत्ल और काफिर, मुर्तद से भी अगली दर्जे। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो अहमद बरेलवी जो है वो यहूद और नसारा को बेहतर समझते हैं देवबंदियों और अहले हदीस और शिया से। तो ये मसला है। जब तक आप मुसलमानों में जो मुनाफिकीन घुसे हुए हैं, चाहे वो शैतान की हत्या चढ़े, बदनीति की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, इनकी गलतियों को गलती नहीं मानते, आपको कोई राइट नहीं पहुंचता किसी काफिर के सामने इस्लाम की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपका अपना इस्लाम मशकूक है। क्योंकि आप लोग जिन लोगों के फ्रंट मैन है, ठीक है, वो लोग तो ये रखते हैं अकायद। अब एक मुफ्ती बैठा हुआ है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है, भाई तू खुद देवबंदी है, भाई देवबंद के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई, मुझसे गुलवाना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह को जायज समझता है दार इस्लाम से खारिज है, काफिर, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर तुम समझते हो नहीं है तो फिर तुम कहो कि है। जो इस तरह की वाज़ेह चीजें जिसमें कोई शख्स अपने आप को रसूल कह ले, इसकी कोई तावील भी नहीं होगी। और जो तावीलात करके इस तरह इधर उधर रास्ते निकाल रहे हैं, उनके लिए हजरत उमर की तलवार है और इंजीनियर साहब की जुबान है। ये अलग बात है कि हजरत उमर की तलवार से इतना नहीं डरते जितनी मेरी जुबान से डरते हैं। और क्यों ना हो, हजरत हसन इब्न साबित को नबी इस्लाम ने फरमाया था, सही मुस्लिम में हदीस है कि हसन, तेरी जुबान के इशार जो है काफरों पर हमारे तलवार और तीर से भी ज्यादा जो है वो लगते हैं उनको। देखे ना, मेरा एक नारा, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, इनका तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो खत्म नबूवत के ऊपर काम वो करेगा जो थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह को भी गलत कहेगा, वरना वो उम्मत के साथ धोखा कर रहा है।
और ये फ्रॉड छोड़े कि आप लोग खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, आप लोग एंटी कादियानी हैं। तो हम आपको खत्म नबूवत के ऊपर लाना चाहते हैं। मुसलमा कज़ाब को भी आपने कंडेम करना है, आपने गुलाम कादियानी दज्जाल को भी कंडेम करना है, आपने चिश्ती दज्जाल को भी कंडेम करना है, आपने थानवी दज्जाल को भी कंडेम करना है। रह गए वो बुजुर्ग, वो चूंकि अपनी कब्रों में जा चुके, हमारे सामने होते, हम उनसे पूछते, अगर वो मानते तो हम उन्हें काफिर कहते हैं। अलबत्ता उनकी तालीमात कुफरी हैं, उसका दिफा करने वाले उलमा काफिर हैं, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिनको पता चल जाए कि उन किताबों में ये खुराफात है, वो प्रिंट करने वाले भी काफिर हैं। और देखें, हमने इतना शोर मचाया, हश्त बहिश्त में से उन्होंने वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया निकाल के वो दोनों जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दिया और ही उसका बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन कम से कम उनको हया आई है। मुफ्ती मुनीफ साहब ने हमारे शोर मचाने की बरकत से, हमारे स्टूडेंट्स के शोर मचाने की बरकत से, ठीक है, मेरे लिए भी सदका जारी है, हमारे स्टूडेंट ने सारी मेहनत की है, तो उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा दे दिया है बकायदा। थानवी रसूलुल्लाह को तो वो पहले ही गलत कहते थे, लेकिन मैंने उनसे दोबारा डिमांड किया कि इसके ऊपर भी फतवा दें। अब देवबंदी भी हिम्मत करें ना भाई, एथियस्ट को आप किस मुंह से बात करोगे? आप लोग तो उन फिरकों के फॉलो करने वाले हैं, उनके फ्रंट मैन है कि जिन लोगों का अपना इस्लाम मशकूक है, जिनका अपना खत्म नबूवत का अकीदा मशकूक हुआ है। तो ये कहना जी हमारी खत्म नबूवत के लिए बड़ी खिदमत है, नहीं नहीं, आप ये कहा करें हमारी कादियानियों के खिलाफ खिदमत है। खत्म नबूवत के राइट सिर्फ मेरे पास है और हमारे स्टूडेंट्स के पास है। हमने पहली दफा खत्म नबूवत तहरीक चलाई है कि ख्वाह गुलाम कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो या थानवी दज्जाल। और उन बुजुर्गों के बारे में हम इसलिए बात नहीं करते, वो मर के जा चुके। अगर तो उन्होंने किया था तो सीधा जन्नत में पहुंचे, और अगर नहीं किया था तो अल्लाह जाने और उनका मामला। लेकिन उनके मानने वाले अगर इसको प्रिंट करते हैं, इसका दिफा करते हैं, तो यकीनन डंके की चोट पे ऐसे लोगों को चंदा देना भी हराम है, इनके पीछे नमाज भी आपकी दुरुस्त नहीं होगी। जाहिर है वो तो काफिर हो गया ना एक बंदा, जिसने अपना बाप भी बदल लिया। अगर एक बंदे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारे रूहानी बाप हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं, नबी हमारे रूहानी बाप हैं, जिसने अपना बाप बदल लिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उसने चिश्ती रसूल और थानवी रसूल अपना बाप मान लिया, तो जाहिर है तो वो तो निकल गया, इस्लाम से तो निकल गया। हमने कभी नहीं कहा उनको चंदा दे, हमने मकतबे फिक्र की बात की है, और मकतबे फिक्र में जो ज्यादा तादाद है वो वामुन नास की है, जो मसाजिद के लिए चंदा देते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, और उन बेचारों को नहीं पता कि उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। मुझे भी नहीं था पता, जब मुझे पता चला मैंने भी अपने बुजुर्गों से लाने बरात किया। आपको भी पता चल गया ना, तो आप लोग भी अब लाने बरात करें। मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, मैं हर जगह सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। लेकिन जब हम खत्म नबूवत के अकीदे पे एक नहीं है, तो हम आगे काम कैसे कर सकते हैं? हमारा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता इस हवाले से, जब तक आप खत्म नबूवत पे नहीं आते। एंटी कादियानी नहीं, खत्म नबूवत ज़हन में रखिएगा। अल्लाह से डर जाए, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम पूरी जिंदगी गुलाम कादियानी दज्जाल को गलत कहते रहे, और जब खुरा हमारे घर निकला चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल, तो हम आए बाएं करना शुरू हो गए। ओए तुम लोगों को शर्म भी नहीं आई है? मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब पहले कहें फिर हम कहेंगे। इस दौरान अगर तुम्हें मौत आ जाती तो किधर जाते तुम? तो इंजीनियर साहब के नजदीक थानवी रसूलुल्लाह के बाद कोई इंसान कैसे खत्म नबूवत पे कायम रह सकता है? ये तो आप बताएं ना कि आप वो बताएं ना। मेरा तो सवाल है उनसे, यही मेरा सवाल है कि फिर अगर ये दायरा इस्लाम से खारिज है, मुझे जो आप कहते हैं कि कहो ये दायरा इस्लाम से खारिज है, तो मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा कहें ये खारिज है, फिर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। बहसीत मुसलमान मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं किसी आदमी को मैं आखिरी टाइम तक भी मैं मार्जिन दूँ। मेरे सुनने में गलती तो नहीं है, उनके कहने में गलती तो नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मैं क्लियर होता हूँ कि थानवी रसूलुल्लाह वो लोग मानते भी हैं और कहते भी हैं, मैं कहूँगा जी वो काफिर है। मुझे पता चले कि वो कहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह थे और उनके मानने और दिफा करने वाले मैं कहूँगा जो काफिर थे। मैं किसी इंसान के लिए कि आप रसूल से बेवफाई करूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो साहब खुद नहीं कह रहे ना, उनको पता है कि शायद ये इन्होंने रिसालत का दावा नहीं किया हुआ, इसलिए वो खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे, दूसरे से कह रहे हैं कि नहीं तुम कहो। ये तो शरारत है। तो देखें, मैंने बिल्कुल उधार नहीं रखा। मुझे जैसे ही पता चला, सवाल आया, मैं फौरन कह रहा हूँ कि अपना ईमान बचा लो। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले, चिश्ती रसूलुल्लाह को सही मानने वाले, इसको प्रिंट करने वाले दायरे इस्लाम से खारिज है। मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी नहीं आया कि मैंने कभी ऐसे लोगों को मुसलमान समझा। रहा पूरा फिरका, तो उसकी बात यह है कि वो फिरका तो छोड़ के मेरे साथ जो है वो मेरे स्टूडेंट्स मान के रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो गए। उनको तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि तो सरीबुल फितरत थे। लेकिन देख लो तुम्हारे ऊपर क्या नौसत पड़ी है मौलवियों के साथ उनके फ्रंट मैन बनने की, से कि तुम्हें अभी तक तौफीक नहीं हुई है। तुम मुझसे कहते हो कि नहीं, मैं कहूं, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं
देख लो, तुमसे ज्यादा सलीमुल फितरत लोग थे जो अपने फिरकों को छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इंजीनियर साहब पहले लिख के दें, उनका भी इंजीनियर साहब ने बताया लानत भेजते हैं हम अपने बुजुर्गों के ऊपर कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए और प्रिंट किए। तो लो, तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मुझे खुशी होगी अगर मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप इस वीडियो के बाद ही अपनी तौबा रिकॉर्ड करवाए और डंके की चोट पे कहे, ठीक है? तो मेरे लिए खुशी की बात है और मैं हर जगह आप लोगों का दिफा करूंगा। हाँ, लेकिन इसके बाद जो बंदियों या फिल्मियों के मदारिस में आप लोग दर्स देने नहीं जा सकेंगे, उसके लिए मैं पेशगी माजरत करता हूँ। तो उसकी तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अव्वल तो ऐसा होना नहीं है कि आप लोगों को तौफीक मिले, तौफीक मिल जाए तो उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है, उसके लिए मैं पेशगी माजरत करता हूँ कि अगर आपको इस हवाले से तकलीफ पूरी जिंदगी फिर जो उठानी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैं तो वो वीडियो लूंगा और मैं उसका इतना ढिंढोरा पीटूंगा। आपको पता है, जो वीडियो मैं गोद ले लूं और इसी तरीके से पॉलिटिक्स में जो चीज पीटीआई के यूट्यूबर्स गोद ले लें, फिर दुनिया का कोई बंदा नहीं बचता कि उस तक वो बात ना पहुंचे। तो हम तैयार बैठे हुए, आपने डिमांड की, मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी। और रहा फ्रंट मैन, और वो आपने साबित किया कि आप लोग फ्रंट मैन हैं, क्योंकि वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि ये इंजीनियर साहब के हैं, तो मैं फिर उन उलमा को अपने साथ लेके तो एकेडमी आ जाऊंगा। किन उलमा को? जिनके फ्रंट मैन हो, जाहिर है। तुम तो अपनी बात करो, फ्रंट मैन है हो तो तभी उनको साथ लेके आ रहे हो ना, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। तो अपने ईमान का इजहार करो। हाँ कि जी भाई, हम आंदा के बाद खत्म नबूवत पे काम करेंगे, एंटी कादियानी नहीं करेंगे, ये धोखा देना छोड़ो। और ये मुझे इसलिए करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत से दर्जनों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया, पूरी पूरी फैमिलीज मुसलमान हुई हैं, मुझे यहाँ एकेडमी में मिल के गए हैं। मैंने आज तक किसी के साथ बिठा के वीडियो नहीं बनाई, वरना तुम लोग जो करोड़ों के चंदे खा रहे हो, जो खत्म नबूवत तहरीकों के नाम के ऊपर जो चंदे खाने वाले लोग हैं, मैं इन फ्रंट मैनों की बात नहीं कर रहा, इनके मौलवियों की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है क्या क्या गाड़ियों में वो फिरते हैं, ठीक है? वो इनका एक बैठा हुआ यूके में सुहेल बाबा, उसके कई स्टूडेंट्स छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अटैच हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचे हैं। मैंने उनको कहा, उनको को कहते हैं कभी भी नहीं थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पे बोल सकते, ये कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके चंदे लोग बंद कर देंगे। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि अहमद बरेलवी साहब ने उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, सबा सनाबिल की, और उससे बड़ा झूठ एक रसूलुल्लाह की बारगाह में बोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया बगैर तहकीक के। पीर मेर अली शाह साहब ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, रद्द के लिए नहीं, एक्सेप्ट किया उसे। और रशीद थानवी ने पूरी किताब चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा में, जो एक किताब थी उनकी चिश्तिया की, उसमें बकायदा इसको फवाइदुस सालिकीन के वाक़े को डिफेंड किया, अस-सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया किताब के अंदर। और उसने हर बात का जवाब दिया, और जो जो उसने बोंगियां मारी है, मैंने कुरान और सुन्नत से उसका पोस्टमार्टम करके रख दिया। अगर तुम्हारे हकीमुल उम्मत का इल्मी लेवल ये है ना, तो बाकी तो शाही कोई नहीं है। तो मैं तकी उस्मानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह से डर जाए, आपने मरना है। ये मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ आपको डिक्लेयर किए हुए हैं, ये आपके कोई काम नहीं आना अगर आपने खत्म नबूवत का अकीदा सही ना बताया देवबंदी अवाम को। मुफ्ती मुनीर साहब ने तो काफी हद तक अपना कर्ज उतार दिया, अगरचे अभी कुछ बाकी है, जो बाकी तसव्वुफ की बातें हैं उनके ऊपर। तो अल्लाह से डरें, अपनी कब्र में जाना है। तो मेरा ये दर्द जो है वो आप लोगों की आखिरत की फिक्र में है। हमारे नजदीक जिस तरह अकीदा तौहीद इंपॉर्टेंट है, इस तरह खत्म नबूवत का अकीदा भी इंपॉर्टेंट है। हम किसी ऐसे फिरके को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है जो ऐसे बुजुर्गों के मानने वाले हैं। रही अवामुन नास, वो अल्हम्दुलिल्लाह हक कबूल कर दी है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम आपकी आखिरत की फिक्र में, आप भी हमारी आखिरत की फिक्र में रहें, बिल्कुल रहें, इल्मी तरीके से चीजें हाईलाइट करें, हम कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन खुदा के लिए इन फिरकों से अलग हो और डंके की चोट पे खत्म नबूवत के अकीदे को बयान करें। सिर्फ एंटी कादियानी के ऊपर इक्तफा करेंगे तो भाई फिर आप कादियानियों को इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। फिर आपके साथ वही कुछ होगा कि जब आप बैठेंगे तो जवाब नहीं दे सकेंगे, ठीक है? इसीलिए देखें, हमारे जब मुनाजिर या डिबेट करने वाले कादियानियों के सामने बैठते हैं तो किस तरह फिर वो भीगी बिल्ली बनते हैं उनके सामने, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने अपने बुजुर्गों को कुछ कहा तो फिर हम उधर वापस नहीं जा सकेंगे, जवाब ही नहीं दे सकते, जलील होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंजीनियर साहब को आयत समझने में जो गलती हो रही है वो इसलिए कि वो अरबी नहीं जानते। अगर वो अरबी जानते होते
वो ये गलती ना करते। ना वो अरबी जानते हैं, ना अरबी पढ़ना जानते हैं। मैं कल इत्तेफाक से एक वीडियो किसी ने वो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो सामने आई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो कुरान भी सही नहीं पढ़ पा रहे। और मैं आपको शायद भाई और बाकी ऑडियंस को बताऊं, मैंने कभी भी इनिशिएट नहीं किया किसी मसले को। लोग मेरी वीडियोस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटते हैं। मैंने इनको कहा कि तुम अपने तीनों बड़े मुफ्तियों जो है तकी उस्मानी और मुनीबुर रहमान मुफ्ती और साजिद मीर, इनसे को कुरान तिलावत करें, मैं भी तिलावत करूंगा। तो ये कहते हैं जी मेरी किरात की गलतियां तो इमाम काबा से भी हुई हुई हैं। इब्राहिम शरेम जो है सूरह बकरा में फंस गया है, यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो देखें, 4-5 दफा वो पढ़ ही नहीं सका हुदल्लिल मुत्तकीन की जगह हुदल्लिल नास, कभी कुछ निकल जाता है, कभी कुछ, अलिफ लाम मीम से ही आगे नहीं वो जा सका। तो हो जाता है गलती, इस तरह मुझसे भी पढ़ने में गलती हो सकती है। तो मेरा वो क्लिप उठाते हैं कि देखो चैलेंज करता था और खुद गलत पढ़ रहे। ना, तुमने कहा कि मैं गलत पढ़ता हूं तो मैंने उसके जवाब में कहा, ठीक है। तुमने कहा कि मैं एथियस्ट का फ्रंट मैन हूं, फिर मैंने तुम्हें बताया कि तुम लोग किसके फ्रंट मैन हो। तुमने कहा कि मैं हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा हूं और हिंदू जो है वो मुझे पसंद करता है, तो मैंने तुम्हें फिर उसके रिबटल में बताया कि मैं तो इस्लाम का दिफा कर रहा हूं। तुम्हारे तो किसी मुफ्ती को तौफीक नहीं हुए कि ध्रुव राठी की बातों का जवाब दे सके। मैंने दिफा किया ना इस्लाम का, जो काम तुमने करना था। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस है ना एथियस्ट के खिलाफ इल्मी तौर पे। तुम लोग तो सिर्फ बेइज्जती ही करवाते हो उनसे जाके। इसलिए खत्म नबूवत पे काम करें, एंटी कादियानी काम ना हो, खत्म नबूवत पे काम हो। फिर चाहे कादियानी दज्जाल हो, चिश्ती दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, कोई भी हो, उनके ऊपर आप वही फतवा लगाएं जिस तरह मैंने लगाया। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।